Now we will start with the amendments which are related to the topic of payment of taxes. First important amendment which has taken place is relating to section 49, which says that if there is balance amount available in the electronic cash ledger under CGST Act of a registered person to the electronic cash ledger under CGST Act of a distant person is allowed to be transferred. Now, what does it mean? Is that अगर किसी टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है, कोई भी हेड में हो, और उसका कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है, मीनिंग if there is an establishment of a distinct person, let's say with a different registration number, maybe in the different state or in the same state, with a GST and different GST number. In that case, the balance in the electronic ledger from one distinct person can be transferred to different distinct person. Now, distinct person क्या है हमने in detail देखा है. Section 25 governs the categories and kinds of distinct person which are there under GST law. तो इस केस में अभी कैसे होगा? Let us try to assess this. Notwithstanding anything contained in this act, government may, on the recommendation of the council, subject to such condition and restrictions, specify maximum proportion of output tax liability under this act or under IGST Act, which may be discharged through electronic credit ledgers by a registered person or a class of registered persons as may be prescribed. Goods and Services Tax Act in such manner and subject to such conditions and restrictions which may within such time as may be prescribed, a registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this act to electronic cash ledger for IGST, CGST, UTGST or cess or integrated tax, central tax or a distinct person specified in section 25, 4 or 5 in such form and manner and subject to such condition and restriction as may be prescribed, and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this act, provided that no such transfer under clause B shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in his electronic liability ledger. तो अगर ट्रांसफरर के केस में कुछ लायबिलिटी पेंडिंग है और वो उसके कैश लेजर से ट्रांसफर करना चाह रहा है बैलेंस, तो फर्स्ट ही विल हैव टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी, मेक इट नील एंड देन ही कैन ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन. तो इस प्रकार से इस अमेंडमेंट को पढ़ा जा सकता है. तो दिस इज अ गुड फैसिलिटी बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि एक ही कंपनी है और एक ही कंपनी के एक जीएसटी नंबर पे पैसा है, वहां पे लायबिलिटी नहीं है, और दूसरे पे लायबिलिटी है, वहां पे पैसा नहीं है. तो यहाँ पे अलग पैसा भरो और लायबिलिटी पे करो और उधर का पैसा रिफंड करके क्लेम करो. ये थोड़ी सी दिक्कत होती थी. बट कंसिडरिंग फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू टेक वन एग्जाम्पल, देन लेट्स से देयर इज अ ए कंपनी एंड देयर इज अ बी कंपनी. सॉरी, देयर इज a unit A and unit B of ABC प्राइवेट लिमिटेड. ओके, इसी के ये दो यूनिट्स है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 1 लाख रुपीज अमाउंट है और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में नील है. लेकिन बी के केस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नील अमाउंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में 50,000 का लायबिलिटी दिख रहा है. तो क्या होता था कि ये 1 लाख रुपीज का रिफंड क्लेम करो. पहले क्या होता था, रिफंड क्लेम करो एंड देन यू पे द लायबिलिटी ऑफ 50,000 बाय ब्रिंगिंग दिस कैश इनटू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ बी. भले कंपनी एक ही है, जैसे ये GSTIN इस कंपनी का जो है और GSTIN इस कंपनी का जो है अलग अलग है, इसकी वजह से ये दिक्कत होती थी. तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज दिस 1 लाख कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड transferred to the electronic cash ledger of B, and from here, let's say out of 1 lakh, I transfer 50,000 to electronic cash ledger of B and then pay this liability, square it off. So यहाँ पे 50,000 रुपए बच जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यहाँ पे नील पोजीशन क्रिएट हो जाएगी. तो दिस वे दिस प्रोविजन कैन बी इंटरप्रिटेड. Then deposit of electronic cash ledger
कैन बी मेड थ्रू यूपीआई एंड आईएमपीएस एज वेल। तो जैसे अलग अलग पेमेंट मेथड्स प्रिवेलिंग है, उन सबको कवर करने के लिए यूपीआई एंड आईएमपीएस की भी फैसिलिटी अभी दे दी है, तो उसके रिलेटेड ये प्रोविजंस ऐड की है। Then levy of interest provided on ITC wrongly availed and utilized. Now, if we consider the mechanism of section 50, तो section 50 में there are technically two parts, section 50 subsection 1 and section 50 subsection 3. section 51 में जो interest का, दोनों भी सेक्शन इंटरेस्ट के बारे में बोलते हैं। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में जो इंटरेस्ट है उसका रेट 18% प्रिस्क्राइब था, और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में जो रेट था वो 24% प्रिस्क्राइब था। तो दो 1 और 3 में डिफरेंस क्या था? जब लायबिलिटी और एनी अदर सम का सवाल है, डीले, तो उसमें इंटरेस्ट 50 सबसेक्शन 1 के हिसाब से मतलब 18% से लगता था, और रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी के केस में सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 मतलब 24% ऐसे इंटरप्रिटेशन था। लेकिन वो एक अलग उसमें इशू था, क्योंकि उसमें मैचिंग कंसेप्ट और पुराने रिटर्न्स को रेफरेंस दिया था। 53 वैसे रिडंडेंट बन जाता था, तो 24% वाज नेवर अ रेट। बट इसको इफेक्ट करने के लिए रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017 दिस 24% हैज बीन चेंज टू 18%। तो अभी जीएसटी में फिलहाल एक ही रेट है इंटरेस्ट का, 18%, भले वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 हो या सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 हो, दोनों केस में 18% ही होगा, और ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है तो वैसे इशू नहीं आना चाहिए। देन मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, ये रूल 88B है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन आई विल इन्फॉर्म यू कि अगर जीएसटीआर 3B है, किसी एक पीरियड की लायबिलिटी है, और वो उस पीरियड में ना दिखा के किसी अगले वाले पीरियड में दिखा रहे हैं हम लोग, वी फॉरगेट टू शो दैट लायबिलिटी इन दैट रिस्पेक्टिव पीरियड, तो वो लायबिलिटी पे ग्रॉस लेवल से इंटरेस्ट पे करेंगे। ग्रॉस लेवल मतलब क्या? विदाउट डिडक्टिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट, पूरा के पूरा उस पर चार्ज होगा। अगर उस पीरियड का है, उसी पीरियड में दिखा रहे हैं, लेकिन लेट फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्च 2023 का रिटर्न है जो हम लोग मई में फाइल कर रहे हैं, मार्च का ही कर रहे हैं लेकिन मई में कर रहे हैं और खुद होके कर रहे हैं, तो उसमें उससे आईटीसी डिडक्ट करके नेट अमाउंट जो है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन मार्च का रिटर्न है, मई तक फाइल नहीं किया है, और सेक्शन 73 या 74 की नोटिस आती है, तो उस केस में ग्रॉस लेवल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझेंगे बाद वाले टॉपिक के डिस्कशन के टाइम पे। Then clarification regarding utilization of amounts available in the electronic credit ledger and the electronic cash ledger for payment of tax and liabilities. तो यहाँ पे कुछ issues थे, तो issue को clarification दे दिया है। तो first question that whether the amount available in electronic credit ledger can be used for making payment of any tax under GST law. तो इसको आंसर किया है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 49(4) द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अभी क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट आ रही है वो टेक्निकली कहाँ से आ रही है? तो हमने जो परचेसेस किए हुए हैं, तो परचेसेस रिलेटेड इनवॉइस है, उस पे जो टैक्स हमने पे किया है, तो वो वाला अमाउंट हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ रहा है। इट इज फ्रॉम द invoices of the supplier who have passed their tax incidents through GSTR1 or IFF. So Rule 86(2) provides for debiting of the electronic credit ledger to the extent of discharge of any liability in accordance with the provision of section 49A or B. Further, output tax in relation to taxable person is defined in section 282 as a tax chargeable on taxable supply of goods or services or both, but excludes tax payable on reverse charge mechanism. Accordingly, it is clarified that any payment towards output tax, whether self-assessed in return or payable as a consequence of proceeding initiated under the provisions of GST law, can be made by utilizing the amount available in electronic credit ledger of a registered person. It is further reiterated that as output tax does not include tax payable under reverse charge mechanism, implying thereby that the electronic credit ledger cannot be used for making payment for reverse charge mechanism. तो reverse charge का ये लॉजिक है, इसके वजह से reverse charge का पेमेंट ये कैश लेजर से ही होगा, कैश डिपॉजिट करके कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही किया जाएगा, बल्कि ना कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से। सेकेंड क्वेश्चन है whether the amount available in electronic credit ledger can be used for making payment of liability other than tax under GST law. तो इसको आंसर किया है इट कैन
इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी इंटरेस्ट पेनल्टी सेस। ये इसका रीजन क्या है? तो सिंपल सी चीज है, जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी या फी ये कंपोनेंट हो ही नहीं सकते, बिकॉज उसमें जो सप्लायर हमें सप्लाई टैक्स इंसिडेंस पास कर रहा है वही सिर्फ आएगा, विच मे बी टैक्स सेस अंडर सी, एस और यू, और मैक्सिमम सेस आ सकता है कोई लग्जरी आइटम है तो, बट नेवर इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस, क्योंकि वो इंटर कंपोनेंट ट्रांसफर वहां पे अलाउड नहीं है। जैसे कैश लेजर में हम लोग गलती से किसी रॉन्ग हेड में पे करते हैं, जैसे कि पेनल्टी या फीस में डिपॉजिट कैश करते हैं, तो वहां से निकल के हम लोग टैक्स कंपोनेंट में ला सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, बिकॉज इट इज कमिंग थ्रू द इनवॉइसेस ऑफ द सप्लायर्स। Whether the amount available in electronic cash ledger can be used for making payment of liability under GST law. As per 49(3), the amount available in electronic cash ledger may be used for making any payment. अभी जब जो मैंने डिस्कस किया कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपोनेंट टू कंपोनेंट, सो टैक्स पे करना है या इंटरेस्ट करना है या पेनल्टी करना है, किसी भी एक हेड में पैसा पड़ा हुआ है तो उस हेड से रिस्पेक्टिव हेड्स को ट्रांसफर करने की प्रोसीजर जीएसटी लॉ में है। देन रूल 85 अमेंडेड ओविन टू अभी जहां जहां पे ओमिशन था सेक्शन 42 43 मैचिंग रिलेटेड जो भी है सेक्शंस, वो मैच मिसमैच रिलेटेड रेफरेंस निकालने का काम इसमें किया है, क्लीनिंग ऑफ लॉ यहाँ पे किया है, तो अमेंडमेंट में ये सारे रेफरेंसेस मिटा दिए गए हैं। देन गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रूल 86A। तो रूल 86A क्या है? तो ड्यू टू सर्टन रीजंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर मेरे पैसा है भी, मैंने जो प्रोक्योरमेंट्स किए हैं परचेसेस किए हैं उसका आईटीसी क्लेम किया है वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है, लेकिन द गवर्नमेंट में फ्रीज द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड नॉट अलाउ मी टू यूटिलाइज द अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ एनी ड्यूज। ऐसा किस चीज में हो सकता है? तो देर इज अ रीजनेबल बिलीव बाय द अथॉरिटीज कि ये डिसअलाउ करना चाहिए, बिकॉज ये एक तो रॉन्गफुल मैनर में आया हुआ है या रिकवरी में। फॉर एग्जांपल मैं एक दे देता हूँ कि कोई सप्लायर है, सप्लायर ए ने सप्लायर बी को सप्लाई किए गुड्स, तो ए हैज सप्लाइड गुड्स टू बी वर्थ रुपीज सम 10 लाख रुपीज, और जिसपे 1 लाख रुपए का टैक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ बी में 1 लाख रुपए का बैलेंस आ गया, लेकिन ये 10 लाख रुपीज का सप्लाई इसने करके भी टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को, और जब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो समझ में आ रहा है ए भाग चुका है, तो ये टैक्स बिना पे करके भाग चुका है, तो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू? फ्रीज द बैलेंसेस ऑफ बी ऑफ 1 लाख एंड नॉट अलाउ बी टू यूटिलाइज दिस 1 लाख, बिकॉज इट हैज बीन कमिंग इट हैज बीन कमिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ बी वाया अ फ्रॉडुलेंट मैनर, उसका टैक्स उसने रिकवर किया है बट पे नहीं किया है। इट इज अनरीजनेबल फॉर बी दैट वी अंडरस्टैंड कि बी ने तो पैसा ए को दिया हुआ है, बट स्टिल द प्रोविजंस अलाउ द डिपार्टमेंट टू फ्रीज एंड नॉट अलाउ बी टू यूटिलाइज द बैलेंसेस। तो ग्राउंड्स क्या क्या है जहां पे ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट? तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स विच आर देयर। एक, क्रेडिट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स इशूड बाय सप्लायर हु इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, वो है ही नहीं उस जगह पे, और इज फाउंड टू बी नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम दैट प्लेस। या तो फिर क्रेडिट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द इनवॉइस और डेबिट नोट विदाउट एक्चुअली रिसीविंग द गुड्स, ऐसा समझ में आता है कि फेक इनवॉइसिंग किया है, इनवॉइसिंग सिर्फ किया है लेकिन गुड्स बेचे नहीं है, तो वो केस में भी कर सकती है गवर्नमेंट। द क्रेडिट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट, जैसे मैंने केस बताया कि बिना टैक्स पे करके वो निकल चुका है, and registered person claiming the credit is found to be non-existent or is found to be not conducting business from the place of business जहां पे रजिस्टर्ड है, तो वहां पे नहीं, अगर मिसिंग है या मिलता नहीं है उस एड्रेस पे तो भी ब्लॉक कर सकती है। इसी के साथ हमारा पेमेंट ऑफ टैक्सेस का टॉपिक कवर हो चुका है। मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स दैट वी डिस्कस्ड आर आइदर डिस्कस्ड इन द क्लासरूम or provided to you through reference update referencer. There are not many changes as far as the payment is concerned. So that was it from my side on payment of taxes. Thank you so much.